Hello friends, welcome back. Thanks for your love and support. So based on your request and after multiple emails, so this would be a new video series for the technical analysis. Here I would be covering basic part of technical analysis. So if you are a beginner, you should be watching this, and if you are confused that from where I need to learn it and what are price action things, so it will be complete basic series. सो अगर आप में से कोई हो जिनको ये बेसिक्स आता है तो मे बी ये वीडियो आपके लिए उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगी, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड इफ़ यू कैन सी दैट यू कैन ब्रश अप योर नॉलेज, और मे बी इफ़ देयर वुड बी सम लर्निंग गैप ड्यूरिंग योर इनिशियल फेज you can fill that. So on this note, let's start the video. So the information which I would be sharing here, it's taken from Investopedia. So because that is the one of the authentic place, I don't want to misguide you. So all those information which you will be getting in this slide is available on the Investopedia website. So if you want to enhance your further learning, that is very good website to look into. So when we talk about technical analysis, so as per the definition, technical analysis is a trading discipline employed to evaluate investment and identify trading opportunities by analyzing statistical trend gathers from trading activity. क्या हुआ, बहुत थोड़ा बुकिश हो गया? I can understand. Mostly technical analysis is the study of price and volume. प्राइस क्या होता है? एक शेयर का जो प्राइस होता है वो कभी अप होता है, कभी डाउन होता है. तो वो जो प्राइस अप और डाउन होता है उससे हमें ट्रेडिंग सिग्नल मिलते हैं. क्या ये प्राइस इतना चीप है कि मैं बाय कर सकूं? क्या ये प्राइस इतना ज़्यादा कॉस्टली हो गया है कि यहाँ पे बाय करना बहुत सही डिसीजन नहीं होगा और मार्केट कैन रिवर्स? क्या मैं उसको शॉर्ट करके इससे पैसे कमा सकता हूँ? देन इट्स वॉल्यूम. वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितने लोग उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में ट्रेडिंग कर रहे हैं. लेट्स से देयर आर 100 पीपल. इफ 50 इज बाइंग, 50 इज सेलिंग, इट्स इक्वल. वहीं पे अगर 80 इज बाइंग एंड ओनली 20 इज सेलिंग, तो ऑफ कोर्स मार्केट वुड बी, देयर वुड बी हाई डिमांड एंड मार्केट वुड गो अप. फॉर एन एग्जाम्पल, जब आईफोन लॉन्च होता है तो उस टाइम पे आप देखते हो प्री बुकिंग होने लगती है, तो वहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं. तो इनिशियल फेज में आईफोन का प्राइस बहुत हाई रहता है, बट वंस यू फील दैट, वंस यू सी दैट इट हैज़ मार्केट इज एस्टैब्लिश्ड, तो जैसे जैसे मॉडल पुराना होता जाता है उसमें आपको डिस्काउंट मिलता है. इट्स नॉट ओनली आईफोन, इट्स विद द मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. सेम गोज फॉर प्राइस एज वेल. सो इसलिए हम वॉल्यूम एनालिसिस करते हैं ताकि हम ट्राई कर सकें मार्केट का डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने के लिए, या फिर अगर हम प्रिडिक्ट ना भी कर पाए तो जिस साइड लोग जा रहे हैं हमें उनको फॉलो करना चाहिए. जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि वी आर नॉट एस्ट्रोलॉजर, कि कल का प्राइस, कल निफ्टी कहाँ ओपन होगी, ये नो वन नोज. ओनली 2 पर्सन नोज. One is God, another is liar. ठीक है? So overview. It's a trading discipline. When I say that discipline, it's not about that I'm punctual or something like that. Discipline is the part of study. So when we talk about stock market, there are 2 kind of studies available here. One is fundamental analysis, another is technical analysis. If you want to learn fundamental analysis, you can search on YouTube, on Google, and you will get ample of videos. But my expertise not on fundamental analysis, neither I believe that. For an example, when I cannot predict my company's performance, how can I predict another company's performance? It's as simple as that. एक टेक्निकल एनालिस्ट बिलीव करता है कि जो भी प्राइस चेंजेस हुए हैं
वो प्राइस चेंज इंडिकेट करता है कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। उसका कोर कॉन्सेप्ट प्राइस में रहता है। कई बार होता है कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, एज ए फंडामेंटल एनालिस्ट, I might find that a company is performing very good. Let's say ITC. They make so many products, but if you are in market, you can see the price movement of the ITC. So as a technical analyst, normally लोग ITC को buy करने से मना करते हैं, but at the same time, as a fundamental analyst, they advise people to buy that. ठीक है? टेक्निकल एनालिस्ट सोचते हैं कि फंडामेंटल कंपनी के कभी भी चेंज हो सकते हैं। कोई भी कंपनी इतनी बड़ी मार्केट से बड़ी नहीं होती है। आप लोगों के सामने एग्जांपल है आरकॉम, रिलायंस कम्युनिकेशन, स्नैपडील, अभी रिसेंटली पेटीएम। उन कंपनीज के फंडामेंटल स्टार्टिंग में सही थे, बहुत बड़ी कंपनी थी, लेकिन अगर आप उसके प्राइस चार्ट को देखोगे तो वो प्राइस सब कुछ बोल रहा था। खैर, ये तो अभी ओवरव्यू है। एज वी मूव ऑन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। प्लीज अलाउ मी सम टाइम, आई विल क्लैरिफाई एवरीथिंग फॉर यू एज ए लेमैन लैंग्वेज। देखो, द फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इज कॉल्ड चार्ल्स डॉ, हु हैज गिवन द थियरी एंड वॉट एवर बुक आर बीइंग पब्लिश्ड, या फिर कहीं पे जितने भी वीडियोस बने हुए हैं, जो भी टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो चार्ल्स डॉ के कॉन्सेप्ट को ही आगे लेके जा रहे हैं। डॉ सर का दो चीज मानना था। एक, मार्केट आर एफिशिएंट विद वैल्यू रिप्रेजेंटिंग फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस अ सिक्योरिटीज प्राइस, बट इवन रैंडम market price movement appear to move in identifiable pattern and trend that tend to repeat over time. So I'll clarify it. कहने का मतलब है, डॉ सर का मानना था कि प्राइस सब कुछ को जस्टिफाई करता है। आप देखोगे कि अगर कोई स्टॉक प्राइस गिर रहा है तो कहीं ना कहीं कंपनी के फंडामेंटल का आपको पता चल जाएगा। कोई कंपनी अगर ग्रो करेगी, वो प्रॉफिटेबल होगी, उसका मैनेजमेंट अच्छा होगा, प्रोडक्ट अच्छे होंगे, तो अब ऑफ कोर्स उसका शेयर प्राइस नहीं गिरेगा। और दूसरा उनका मानना था कि रैंडम प्राइस मूवमेंट भी अगर होते हैं तो उस पैटर्न को अगर हम आइडेंटिफाई कर लें तो हो सकता है कि हम प्राइस के मूव को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए जो ये टेक्निकल एनालिसिस के जो टूल्स होते हैं, एक है प्राइस ट्रेंड, दूसरा बोलते हैं हम चार्ट पैटर्न एंड कैंडल पैटर्न, तीसरा है वॉल्यूम एंड मोमेंटम इंडिकेटर्स, देन अगेन वी हैव ऑसिलेटर्स, मूविंग एवरेज, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो इन सब चीज़ों पे मैं बात कर रहा था। एंड अगर आप स्टॉक मार्केट यूट्यूब पे डाल दो तो इन सब चीज़ों की बाढ़ आ जाएगी आपके पास। बट दीज आर द थिंग्स एज ए टेक्निकल एनालिस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब क्या अच्छा है, क्या बुरा है, एट दिस मोमेंट वी वुड नॉट गेट इन टू दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर योर बेसिक। You need to understand price trend. That means ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है, कैंडल पैटर्न क्या कह रहा है, वॉल्यूम और मोमेंटम इंडिकेटर क्या बता रहा है। We'll learn about all those things. ऑसिलेटर्स होते हैं कुछ, मूविंग एवरेज होते हैं। I'll create a separate video for each tool. At this moment, just understand, if you want to be a technical analyst, you need to understand and learn these things. So when we talk about the big picture of Dow theory, this is market discounts everything. So as I said earlier,
Price will tell you all the picture of the company, no matter what. So if you want to understand an organization, if you want to trade, if you are able to understand the price, you would be able to crack 80% of the things. 20% is always unpredictable. Maybe scam, government law, or for an example, TikTok was growing in India. Suddenly ban happened. No one, neither fundamentalist or neither technical analyst was able to predict that. So that is something. So that's why I have told it's 80%. Then we have price moves in trend. Price या तो ऊपर जाएगा ऐसे करके ऊपर जाएगा, या तो प्राइस नीचे जाएगा, या तो प्राइस साइडवेज होगा. That's it. History tend to repeat itself. As a technical analyst, we have to believe that history tend to repeat itself. अब ऐसा क्यों होता है? मार्केट को कौन मूव करता है? We have already spoken about that. मार्केट को मूव करता है इंसान, और इंसान प्रिडिक्टेबल वे में बिहेव करता है. अगर मुझे ठंड लगेगी तो उस टेम्परेचर पे आपको भी ठंड लगेगी, थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है. बट इफ विल गेट इनटू एनी हिमालयन रीजन, तो वहाँ पे हम दोनों को ही ठंड लगेगी. If I'll bang my head with wall, I'll get injured. So do you. कोई भी बैड न्यूज़ होता है तो हम सैड होते हैं, कोई भी गुड न्यूज़ होता है तो हम खुश होते हैं. उसी तरह से मार्केट में फेयर और ग्रीड नाम का एक वर्ड होता है, तभी हिस्ट्री रिपीट करती है. जब भी कोई बैड न्यूज़ होता है तो लोग पैनिक होते हैं, पैनिक सेलिंग आती है. जब भी कोई गुड न्यूज़ होता है तो लोग खुश होते हैं, और जब हम खुश होते हैं तो क्या करते हैं? When we become happy, simply we become optimistic about future. When we become optimistic about future, हर जगह हमें अच्छाई दिखती है. Then तो शेयर मार्केट में बाहर से पैसा आने लगता है. When we hear bad news, अनसर्टेनिटी आने लगती है. जैसे कोविड आया था, कोविड में मार्केट क्रैश करा था. हर किसी को लगा कि आई डोंट नो वेदर टुमारो आई हैव जॉब और नॉट, आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू rebuild my business or not. So whatever money which I have, let's take it from the market and save it in a bank or cash it, so that for my bad time I can utilize that fund. तो ये सारी चीजें, अब जैसे कोविड वाली सिचुएशन थी, उसी तरह से जब भी कोई पैनिक न्यूज होता है तो वी टेंड टू बिहेव इन अ सिमिलर मैनर. चाहे वो फियर हो चाहे एक्साइटमेंट हो. तभी आप चार्ट देख के एनालिसिस करते हो. अगर आपको ये बेसिक क्लियर होगा तो आई एम श्योर यू वुड बी एबल टू सक्सेसफुल. Okay, so the last slide is technical analyst responsibilities. A technical analyst observe and interpret the price action of a security to make prediction about its future direction. They apply this price data to a statistical formula to determine probable outcome. इस definition को आप ध्यान से देखो प्लीज, because this is very important slide. It might be a bookish definition, but मैंने आपको पहले क्या बोला था? फंडामेंटल एनालिसिस होता है, टेक्निकल एनालिसिस होता है. That means it's field of study. If you know none, you are not qualified to handle the money, irrespective of the fact whether it's your money.
अगर ये आपका पैसा है, दैट डजंट मीन कि आप इसको इस तरह से बर्बाद करोगे। लोग बोलते हैं कि पहले सीखो, लर्न देन अर्न। जो लर्न वाला पार्ट आता है ना, वो यही सारी चीज़ें रहती है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करके आपको लॉस नहीं होगा, लेकिन पढ़ाई करके जो लॉस होगा ना, वो आप रिकवर कर लोगे, और वो लॉस आपको तोड़ेगा नहीं। यू वुड बी एबल टू रिबिल्ड योर सेल्फ। सो यू आर फाइटिंग विथ वर्ल्ड्स टॉप माइंड। So unless you don't have any analytical things with you, you are not qualified to spend your or invest your money in the market. Trust me, you would be vanished. Market is cruel, very cruel. अगर आपको इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट हम जैसे लोग होते हैं, सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट। रिमेंबर क्रिप्टो वाला एड, 100 रुपये से बिटकॉइन खरीदो, 100 रुपये से कॉइन सोचो, सारे एक्टर एक्ट्रेस सारे आ गए थे, सारे ऐड आज के डेट में गायब हो गए थे। कौन पूछने आता है? यस बैंक जैसे स्टॉक में फंसे हुए हैं लोग, अभी भी डीएलएफ में लोग फंसे हुए हैं। लोग सोचते हैं कि सो यू हैव टू टेक, देयर आर टू ऑप्शन। इफ यू गॉट टाइम एंड एनर्जी सो दैट यू कैन मैनेज योर मनी, इन्वेस्ट योर टाइम इन लर्निंग। अगर नहीं है तो देयर आर मल्टीपल सेफ वेज। बाय निफ्टी बीज, गिव योर मनी टू पोर्टफोलियो मैनेजर्स, दे विल मैनेज योर मनी, दे विल चार्ज यू समथिंग एंड दे विल मैनेज योर मनी वेरी एफिशिएंटली। यहां पे आप अगर देखोगे डेफिनेशन में, टेक्निकल एनालिस्ट ऑल्सो नोन एज चार्टिस्ट और टेक्नीशियन, एम्प्लॉय टेक्निकल एनालिसिस इन देयर ट्रेडिंग एंड रिसर्च। टेक्निकल एनालिसिस look for the price pattern and trend based on the historical performance to identify signal based on the market sentiment and psychology. Technical analysts may augment their training and education by entering charter market technician professional. So CMT is a qualified course or certification which you can look into if you want to grow yourself and if you want to make your career in this field. You can get multiple video about what is CMT, but my intention is, before you manage your money, you should have fair amount of technical analysis knowledge so that you can identify the trend, you can fight with big player. If you cannot fight with big player, maybe you are able to follow them. So my friends, it's my humble request, if you've got no clue about technical analysis or fundamental analysis, please don't invest. And since you are my audience, that since you are watching this video, that means you are interested in learning. So keep on doing research. In my coming video, I'll be decluttering all those things and I'll create from basic, everything from basic, defining candle, what is chart pattern, what is indicators, what is price action, why indicator trader thinks they are best, why price action practitioner thinks no, they are good. So these are the controversies which you'll learn. It's very interesting subject. So I would request you to keep on doing research and we'll learn about all those things. So we'll meeting soon and I'll create a complete video series on technical analysis series so that you should not miss it. Please subscribe my channel, and again thank you for all love, blessings and support which you have given so far. So be a profitable trader. Signing off for now, and I hope you are interested in technical analysis thing. So we'll meet soon. Thank you.